types of toxic material are there or the toxic waste are there. Then we also discussed the disposal methods for toxic waste or hazardous waste. The disposal is mainly by landfilling and sometimes by incineration. So landfill is the most popular way of disposing toxic waste. All right, now different types of waste. First, I will give you some idea about the toxic heavy metals, and then you had written about the polyaromatic hydrocarbon. Polyaromatic hydrocarbons लिख लिए थे ना? डिफरेंट टाइप ऑफ टॉक्सिक वेस्ट में पॉलीएरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लिखवा दिए थे. अब थोड़े से और बचे हैं, तो पहले जो है ये लिख लीजिए, टॉक्सिक हैवी मेटल वेस्ट. टॉक्सिक हैवी मेटल वेस्ट, हैवी मेटल वाला वेस्ट जो है वो काफी सारा हैवी मेटल वाला वेस्ट जो है वो एक्चुअली ये स्विचेस, सर्किट बोर्ड्स, ये सब जो खराब हो जाते हैं उनको फेंक देते हैं. तो वो जब क्रश होते हैं तो उन्हीं से जो है लेड, कैडमियम, मरकरी, बेरिलियम, ये हेवी मेटल्स जो हैं ये सब स्विच बोर्ड्स, स्विचेस, कैथोड रे ट्यूब्स, इन सब में जो है प्रेजेंट होते हैं. हेवी मेटल टॉक्सिक वेस्ट में लिखो कि many heavy metals are produced by crushing or disposal of switches and circuit boards. Many heavy toxic metals are produced by crushing or disposal of switches and circuit boards. Switches and circuit board. For example, cadmium, beryllium. For example, cadmium, beryllium, mercury, lead. For example, cadmium, beryllium, mercury, lead. These are generated by crushing of circuit boards, plastics, switches, and cathode ray tubes. Chromium is produced by disposal of computer accessories.
क्योंकि क्रोमियम जो है वो एक्चुअली जो इसमें कंप्यूटर में कुछ जो प्लेट्स और वो सब लगती हैं उनको कोरोजन रेजिस्टेंट बनाने के लिए, क्योंकि क्रोमियम जो है वो कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल होता है, तो कोरोजन ना हो उनमें, क्योंकि कंप्यूटर पार्ट्स में कोरोजन नहीं होना चाहिए, तो कुछ प्लेट्स और पार्ट्स जो है कोरोजन से बचाने के लिए उन पे क्रोमियम की प्लेटिंग करते हैं। तो उनको जब डिस्पोज करते हैं और वो क्रश होते हैं तो उनसे क्रोमियम जनरेट होता है। और बाकी तो क्रोमियम जो है जैसे इसमें टैनरी के इफ्लुएंट में बहुत ज्यादा होता है। तो chromium is produced by disposal of computer accessories and also from tannery waste. Also from tannery waste. Then many acids are used in laboratories and other chemical industries. Many acids are used in laboratories and other chemical industries, which are also toxic waste. Fumes from these acids create respiratory problems. Fumes from these acids create respiratory problems. अब ये एसिड्स हैवी मेटल में क्यों आ गए? क्योंकि जैसे HCl है उसमें क्लोरीन हैवी है, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर हैवी है, तो उस तरीके से। वैसे ये मतलब मेटल्स में नहीं है, लेकिन जो है हैवी एलिमेंट्स उस तरीके से हैं इसमें, तो ये भी उसी में साथ में आ जाता है। अब क्वेश्चन लिखो कि व्हाट आर कार्सिनोजेंस? व्हाट आर कार्सिनोजेंस? Give some examples of carcinogens. Give some examples of carcinogens and the problems caused by carcinogens. Give some examples of carcinogens and the problems caused by carcinogens. A carcinogen is a substance. A carcinogen is a substance that can cause cancer in humans or animals. A carcinogen is a substance that can cause cancer in humans or animals. It can get incorporated in human DNA. It can get incorporated in human DNA. Common examples of
नॉन रेडियो एक्टिव कार्सिनोजेंस मतलब कई सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल तो कार्सिनोजेनिक होते ही हैं, रेडिएशन से कैंसर होता है, लेकिन रेडियो एक्टिव के अलावा वाले कार्सिनोजेनिक मटेरियल कौन से हैं? एग्जाम्पल्स ऑफ carcinogens other than radioactive material are asbestos dioxins, asbestos dioxins and tobacco smoke. एस्बेस्टस और डाइऑक्सिन्स अलग अलग हैं. एस्बेस्टस डाइऑक्सिन्स एंड टोबैको स्मोक, ये सब कैंसर कॉजिंग होते हैं अदर देन रेडिएशन. फिर लिखो कि radiations from radioactive material can cause different types of cancer. Radiation from radioactive material can cause different types of cancer. Examples of microbial carcinogen. Examples of microbial carcinogen are aflatoxin, it is a fungus. And some other viruses like hepatitis B virus and some other viruses like hepatitis B virus are also carcinogenic in nature. एफ्लाटॉक्सिन है, हेपेटाइटिस बी वायरस है, ये सब भी कार्सिनोजेनिक होते हैं. ये माइक्रोबियल कार्सिनोजन में आते हैं. तो कुछ बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस जो कैंसर कॉजिंग होते हैं वो माइक्रोबियल कार्सिनोजन कहलाते हैं. फिर कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम लोग को-कार्सिनोजन कहते हैं. इसके लिए क्वेश्चन लिखो, व्हाट आर को-कार्सिनोजेंस? What are co-carcinogens? Co-carcinogens are compounds or chemicals which cannot cause cancer on their own. Co-carcinogens are chemicals or compounds which cannot cause cancer on their own, but they promote the activity
but they promote the activity of other cancer causing substances. But they promote the activity of other cancer causing substances. Examples of carcinogenic chemicals. Examples of carcinogenic chemicals are ethylene dichloride, nitrophenol, ethylene dichloride, nitrophenol, vinyl chloride, etc. विनाइल क्लोराइड एक्सेट्रा. विनाइल क्लोराइड तो जो है पॉलीमर में बहुत यूज होता है. नाइट्रोफिनॉल जो है वो केमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है. एथिलीन डाइक्लोराइड भी बहुत जगह यूज होता है. बहुत सारी इंडस्ट्री में एथिलीन डाइक्लोराइड यूज होता है. These are all cancer causing chemicals and they should be disposed properly. अगर वो इनको इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं, इंडस्ट्री में ही यूज होते हैं ज्यादातर, तो इनका डिस्पोजल जो है प्रॉपर होना चाहिए क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक केमिकल होते हैं. देन नेक्स्ट हेडिंग डाली इनऑर्गेनिक कार्सिनोजेंस. इनऑर्गेनिक कार्सिनोजेंस. Inorganic carcinogens include arsenic, zinc, cadmium, chromium. Inorganic carcinogens include arsenic, zinc, chromium, cadmium, beryllium, silicon, mercury, etc. इनका एक्सपोजर कैसे होता है कि ये डिफरेंट इंडस्ट्री में यूज होते हैं तो उसी में एक्सपोजर हो जाता है. जैसे कि आर्सेनिक जो है वो नेचुरली अकरिंग होता है और वैसे आर्सेनिक जो है वो नेचुरली अकरिंग तो जो है वाटर में, फिश में, इनमें होता है. और कोस्टल एरिया में जो है आर्सेनिक की वो टॉक्सिसिटी जो है ज़्यादा होती है. और उसके अलावा जो है एस्बेस्टस जैसे है, एस्बेस्टस भी जो है वो इंडस्ट्री के थ्रू उसका एक्सपोजर हो जाता है, इनहेलेशन से हो जाता है. एस्बेस्टस का तो इनहेलेशन से होता है, लंग्स में इसका ज़्यादा होता है एस्बेस्टस का. और कुछ जो है वही माइनिंग वगैरह में जो है एस्बेस्टस का होता है, इनहेलेशन के थ्रू होता है इसका इन्फेक्शन. और बेंजीन जो है वो जहाँ तहाँ इंडस्ट्री में यूज होता है और बेंजीन का भी जो है ज़्यादा वेपर्स इनहेल करने से जो है कार्सिनोजेनिक होती हैं. बेरिलियम वगैरह का जो है वो तो यही स्विच बोर्ड वगैरह से होता है. और फॉर्मेल्डिहाइड जो है ये भी उसमें पॉलीमर इंडस्ट्री में यूज होता है. फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बनाने में यूज होता है.
क्योंकि सबसे पॉपुलर फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बहुत यूज होता है, वो बहुत सारे उनमें भी यूज होता है, मतलब ये डेकोरेटिव आइटम्स में क्योंकि रेजिन होता है उससे तरह तरह के डेकोरेटिव आइटम होम डेकोर के बनते हैं, और वो जब टूट जाते हैं तब उनसे फिर जो है ज़्यादा ज़्यादा अमाउंट में जहाँ पे होते हैं तो उससे फिर फॉर्मेल्डिहाइड की टॉक्सिसिटी का वो रहता है। तो ये तो सब हुए जैसे इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हैजार्डस मटेरियल, फिर ऑर्गेनिक हैजार्डस मटेरियल, और रेडिएशन के थ्रू, हैवी मेटल के थ्रू, पॉलीएरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के थ्रू, all these are different sources of hazardous or toxic waste, and how we get exposed to these toxic waste. उसके बाद जैसे रेडिएशन वाला है, ये सभी, और इसमें जो है जैसे ये तो मैंने पूरे सारे गिना दिए, और इसमें इसी में फिर जो है कुछ कार्सिनोजेनिक होते हैं, बाकी जो है नॉन कार्सिनोजेनिक होते हैं, लेकिन हैजार्डस वेस्ट टॉक्सिसिटी में आते हैं। तो जैसे पॉलीएरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, पॉलीएरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है वो हैजार्डस वेस्ट में आते हैं लेकिन कार्सिनोजेनिक नहीं होते, ठीक है। हेवी मेटल में जो है ये जैसे एस्बेस्टस है और मर्करी है, ये जो है उसमें आते हैं, कार्सिनोजेनिक में आते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक में आते हैं। ऑर्गेनिक कार्सिनोजेनिक में जैसे बताया बेंजीन वेपर्स हैं, ये ऑर्गेनिक कार्सिनोजेनिक मटेरियल में आ गए ना। तो इस तरीके से बहुत तरह के कार्सिनोजेनिक, नॉन कार्सिनोजेनिक, टॉक्सिक मटेरियल, टॉक्सिक वेस्ट होते हैं, और जिनसे हम लोगों का एक्सपोजर हो जाता है, और उससे एक्सपोजर से जो है तब फिर वो दे कैन बी कार्सिनोजेनिक। अदरवाइज जो है इफ दे आर नॉट कार्सिनोजेनिक देन अदरवाइज ऑल्सो दे आर टॉक्सिक, और उससे हम जो है मतलब टॉक्सिक इन्फेक्शन हो जाता है। फिर एक इसमें जो, तो इसलिए टॉक्सिक वेस्ट वाला जो है वो थोड़ा सा मतलब उस तरीके से, उस सेंस में जैसे डिसऑर्गेनाइज टाइप से, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स के होते हैं टॉक्सिक वेस्ट, फिर कैसे हमारा एक्सपोजर होता है। तो टॉक्सिक वेस्ट में पहले दो कैटेगरी हो गई, एक कार्सिनोजेनिक वाले, नॉन कार्सिनोजेनिक वाले। फिर कार्सिनोजेनिक वालों में भी जो है वो इनऑर्गेनिक कार्सिनोजेनिक, ऑर्गेनिक कार्सिनोजेनिक, हेवी मेटल कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स, इस तरीके से दो तीन कैटेगरी हो गए। फिर रेडियो एक्टिव कार्सिनोजेंस, नॉन रेडियो एक्टिव, ये वाले तो सारे नॉन रेडियो एक्टिव कार्सिनोजन हो गए। तो अभी तक जो हम लोगों ने कवर किए हैं वो टॉक्सिक वेस्ट में इनऑर्गेनिक टॉक्सिक वेस्ट, पॉलीएरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, organic toxic waste, and then their classification between carcinogenic and non-carcinogenic, and in carcinogenic further segregation in inorganic, organic, heavy metal, carcinogenic, etc. Now there is another class of toxic waste which are generated by radiation, or that is they are radioactive, hazardous, and also carcinogenic material. इसके लिए जो है हेडिंग डाल लीजिए कि रेडियो एक्टिव hazardous materials, radioactive hazardous materials. रेडियो एक्टिव में कुछ तो नेचुरल रेडिएशन से
होते हैं, जैसे बहुत ज्यादा यूवी लाइट के एक्सपोजर से भी, जैसे सुना होगा, स्किन कैंसर हो जाता है। तो कुछ तो नेचुरल रेडिएशन वाले होते हैं और कुछ जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से रेडिएशन जो निकलते हैं वो होते हैं। तो इसमें लिख लीजिए कि रेडियो एक्टिव टॉक्सिक मटेरियल may be from natural radiation. Radioactive toxic material may be from natural radiation or from radioactive material present somewhere on Earth. For example, uranium is a radioactive material used in nuclear power plants. It changes from one isotope to another, emitting certain radiations. Spontaneous example, uranium, which is used in nuclear power plants. Example, uranium, which is used in nuclear power plants. It changes from one isotope to the other spontaneously. It changes from one isotope to the other spontaneously and emits radiation. Until it reaches a stable isotope. फिर लिख लीजिए radioactive sources can be divided into two categories, natural and man-made. Man-made को anthropogenic भी बोलते हैं. Natural and man-made or anthropogenic. Man-made or anthropogenic. Man-made or anthropogenic. Natural sources of radiation are UV rays, and radioactive compounds present in soil. Natural radioactive material are natural radioactive material में या फिर natural radiation
सोर्स हो गया. नेचुरल रेडिएशन सोर्स इज यूवी रेज and some radioactive compounds present in soil. ये तो नेचुरल हो गए दो. मैन मेड सोर्सेस, मैन मेड सोर्सेज में ये हो गए एक्सरे प्लांट्स, एक्सरे इतने ह्यूमन बॉडी पार्ट्स का इतने का एक्सरे करते हैं. तो एक्सरे फैसिलिटी जो होती है वहां पे भी सर्टेन अमाउंट ऑफ रेडिएशन तो रहता ही. मैन मेड सोर्सेज आर एक्सरे प्लांट्स, plutonium powered pacemakers, and other man-made sources. अब दो बता दिए, ये दो हो गए. जैसे एक्सरे प्लांट्स में कुछ ना कुछ जो ऑपरेटर होते हैं वो तो एक्सपोज होते ही हैं टू सर्टेन अमाउंट ऑफ रेडिएशन. जो लोग कराते हैं वो भी रेडिएशन को एक्सपोज होते हैं. ऑपरेटर तो होता ही है एक्सपोज. और फिर जैसे पेसमेकर, कुछ प्लूटोनियम पावर्ड पेसमेकर होते हैं. तो ये सब मैन मेड सोर्सेज हैं रेडिएशन के और रेडियो एक्टिव हैजार्डस मटेरियल के. न्यूक्लियर पावर प्लांट्स तो ही है एक सोर्स ऑफ रेडिएशन. न्यूक्लियर पावर प्लांट्स also come under man-made sources of hazardous material. Nuclear power plants are also sources of man-made hazardous material. Then the more electronic equipments we use, the more we are exposed to radiation hazards. जितना ज्यादा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट हम लोग यूज करते हैं उतना ही रेडिएशन एक्सपोजर होता है. फिर एक जो है एक और इसमें वही शॉर्ट क्वेश्चन टाइप लिखवा देने. फिर एक क्वेश्चन इसमें लिख लो, व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर एक्सपोजर टू रेडिएशन. बाकी तो पीडीएफ है आप लोग के पास, पढ़ लेना हैजार्डस वाला. व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स for exposure from radiation. हम क्या मेजर्स ले सकते हैं कि जिससे हमारा रेडिएशन को एक्सपोजर जो है वो कम हो. तो प्रिवेंटिव मेजर में
प्रिवेंटिव मेजर में जो है वो कई तरह के प्रिवेंटिव मेजर है। पहला लिखिए कि इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्लोज्ड साइकिल कूलेंट सिस्टम मस्ट बी यूज्ड, क्योंकि हैवी वाटर जैसे यूज करते हैं वो क्लोज्ड साइकिल वाला होना चाहिए। क्लोज्ड साइकिल कूलेंट सिस्टम शुड बी यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। क्लोज्ड साइकिल coolant system must be used. Then second, nuclear medicines and radiation therapy. Nuclear medicines and radiation therapy should be done only when absolutely necessary. कैंसर पेशेंट्स की रेडिएशन थेरेपी तो करते हैं लेकिन बहुत लिमिटेड ही करते हैं। न्यूक्लियर मेडिसिन्स एंड रेडिएशन थेरेपी शुड बी डन only when absolutely necessary. Then next point है in chemical industries the use of radioisotopes. In chemical industries the use of radioisotopes must be done under soil. Must be done under soil. तो वो जैसे सॉइल के अंदर जो है वहां पे जो है वो रेडियो आइसोटोप का जो भी करना होता है रिएक्शन वगैरह वो वहां पे करते हैं। या जैसे उसको एकदम क्लोज्ड उसमें करते हैं, क्लोज्ड उसके स्पेशल चैम्बर होते हैं, चैम्बर्स उसमें करते हैं और फिर जो उसका जो एमिशन होता है वो सीधे बहुत दूर बाहर जो है वो निकल जाता है। या फिर उसको एकदम जो है ले जाके कहीं और एकदम एनक्लोज करके रखते हैं और फिर बाद में उसको ले जाके जो है जमीन में नीचे एकदम उसको डिस्पोज किया जाता है, गड्ढे में डिस्पोज किया जाता है। तो बेस्ट डिस्पोजल और कीपिंग जो है वो सॉइल में एक्चुअली होता है रेडियो एक्टिव मटेरियल का। दे आर बेस्ट केप्ट इन डीप बेरीड अंडर द सॉइल, जिससे कि उसकी रेडियो एक्टिविटी जो है वो ऊपर तक फील नहीं होती। Then in nuclear mines अंडरग्राउंड ड्रेनेज आर यूज्ड। वही चीज जो अभी हम बता रहे हैं, क्योंकि बेस्ट डिस्पोजल जो रेडियो एक्टिव मटेरियल का होता है दैट इज ऑलवेज अंडरग्राउंड। इन न्यूक्लियर माइंस अंडरग्राउंड ड्रेनेज इज यूज्ड। बेस्ट तो अंडरग्राउंड होता है, लेकिन जहां पे पॉसिबल नहीं होता है वहां पे लिख लो कि वेयर अंडरग्राउंड इज नॉट पॉसिबल, where underground is not possible and radioactive contamination is there, where underground disposal is not possible and radioactive contamination is there, high chimneys and ventilation are used. ऊंची ऊंची चिमनी यूज करते हैं, एकदम ज्यादा ऊपर ले जाके छोड़ते हैं, या फिर
वैसे बेस्ट वही जो बताया था कि चिमनी के थ्रू कहीं ले जाके कलेक्शन करते हैं और फिर उसका बाद में अंडरग्राउंड डिस्पोजल करते हैं। जैसे कि ये इसमें सबसे ज्यादा मतलब बेस्ट एग्जांपल भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई का है, BARC का। वहां से जैसे लोग टाइम टू टाइम आते भी हैं, कुछ वर्कशॉप वगैरह कराते हैं, तो उसमें वो दिखाते हैं कि कैसे उसका कलेक्शन करते हैं और फिर उसके बाद में फिर उसको वो खुद ही उसको वापस ले जाते हैं और ले जाके फिर उसका अंडरग्राउंड उसका डिस्पोजल करते हैं, क्योंकि बेस्ट डिस्पोजल जो होता है वो अंडरग्राउंड ही होता है, डीप अंडर द ग्राउंड, दैट इज द बेस्ट वे टू डिस्पोज। देन फिर तो बाकी तो ये ऑक्यूपेशनल होता है, जैसे एक्सरे फैसिलिटी के ऑपरेटर्स हैं, फिर MRI फैसिलिटी के ऑपरेटर्स, ये सब जो है कुछ ना कुछ अमाउंट रेडिएशन को एक्सपोज्ड होते हैं। तो इन सब के लिए जो है मतलब ऑक्यूपेशनल रेडिएशन एक्सपोजर के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं जो इनको फॉलो करने होते हैं। तो वो आप लिख लो कि occupational radioactive exposure occupational radioactive exposure should be prevented by following regulations. Occupational radioactive exposure should be prevented by following rules and regulations. Should be prevented by following rules and regulations given by International Commission on Radiological Protection. Given by International Commission on Radiological Protection. ICRP, इसको शॉर्ट में कहते हैं ICRP, इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन। तो जो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर है उसको प्रिवेंट करने के लिए इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो फॉलो करने चाहिए। ठीक है, ये तो इसका हो गया, रेडिएशन वाला हो गया। ये सारे जो है डिफरेंट टाइप के टॉक्सिक मटेरियल हो गए, हैजार्डस मटेरियल हो गए, और डिस्पोजल जो है वो जैसे बताया डिस्पोजल बेस्ट तो लैंड फिलिंग से होता है, और कुछ केसेस में खाली जो है इंसिनरेशन पॉसिबल होता है, वरना बेस्ट डिस्पोजल जो है वो लैंड फिलिंग से होता है। All right, now let us see. So I had given you different
PDFs. We have done solid waste management. We have done hazardous waste. Then we have done solid waste, hazardous waste, biomedical waste. And now you have one more PDF which I have given you, that is EIA and its objectives. EIA, let me see, 1 minute. ये वाला अभी नहीं किया है. EIA एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स वाला अभी नहीं किया है. हम लोगों ने वो किया था खाली एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ 1986 किया, और वो किया उसके SPCB, CPCB, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इनके जो हैं वो किए हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स, और उनके क्या वो है रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है वो सब किए. अभी हम लोगों ने ये नहीं किया, EIA वाला नहीं किया. EIA वाले में ये जो EIA वाला जो PDF है ये डिजास्टर मैनेजमेंट से स्टार्ट किया हुआ है. अभी डिजास्टर मैनेजमेंट पे बाद में आएंगे. पहले जो है ये EIA एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स वाला PDF खोल के उसमें सीधे 3rd पेज पे जाओ जहां पे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हेडिंग पड़ी हुई. आप खोलो, तब तक हम जरा से एक बार फिर से ही देखते हैं सिलेबस. फर्स्ट यूनिट में भी जो है, फर्स्ट यूनिट में जो है वो SPCB, CPCB ये हो गया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हो गया, SPCB, CPCB के ऑब्जेक्टिव्स, एम्स हो गए, और डिस्पोजल ऑफ हैजार्डस वेस्ट हो गया, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हो गया, बायोमेडिकल वेस्ट हो गया ना. फिर ये केस स्टडी ऑफ करंट इशू रिक्वायरमेंट्स ऑफ रूल 14 फॉर एनवायरमेंटल ऑडिट अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986. खाली ये लास्ट लाइन जो यूनिट फर्स्ट में जो लिखा हुआ है ये ऑडिट वाला, ये ऑडिट वाला EIA पहले स्टार्ट करके फिर ऑडिट वाला जो है कराएंगे, क्योंकि इसी में पहले जो है ऊपर वो दिया हुआ नेशनल पॉलिसी ऑन EIA एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रूल्स रेगुलेशंस. अब ये इसमें थोड़ा सा ऐसे मिक्स्ड ऐसा लिखा हुआ है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 86 और उसी में ये सब जो स्पेशल चीजें ऐड करी गई हैं, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल ये हो गया, हैजार्डस वेस्ट जो उसमें ऐड किया है वो भी हो गया, कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है वो भी समझा दिया, एयर वाटर लैंड का अलग अलग नहीं होता है, ये सब एक ही में जॉइंट होता है वो बता दिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इकोनॉमिकल ग्रोथ फैक्टर, इकोलॉजिकल ग्रोथ फैक्टर. यूनिट 2 तो पूरा हो गया. यूनिट 1 में दो चीजें हैं यूनिट 1 में जो रह गई है. एक EIA मतलब क्या होता है, और EIA की डेफिनेशन और उसके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ EIA, लॉन्ग टर्म
ऑब्जेक्टिव्स, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, फिर EIA का ओवरऑल जो प्रोसीजर है, फिर रिपोर्ट, ये तो सब फिर थर्ड यूनिट का आ जाता है। तो फर्स्ट यूनिट में बेसिकली जस्ट what is EIA, what are its objectives, and then environmental audit और ऑडिट की केस हिस्ट्री, ये 3 चीजें फर्स्ट यूनिट की बची है। सेकेंड यूनिट पूरा कंप्लीट हो गया है और उसके बाद में फिर थर्ड यूनिट में मेथडोलॉजीज ऑफ EIA है, जो मेथडोलॉजीज यूज करते हैं EIA के लिए, और फिर उसकी रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, EIS एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, और फिर जो है केस हिस्ट्रीज हैं, खाली डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स की केस हिस्ट्री है। तो बस वही उतना बचा है। मेथडोलॉजीज ऑफ इम्पैक्ट, डिफरेंट मेथडोलॉजीज ऑफ EIA रिपोर्ट, EIS, केस हिस्ट्रीज, ये थर्ड यूनिट का है, पूरा थर्ड यूनिट बचा है। और फर्स्ट यूनिट में जो है व्हाट इज EIA, व्हाट आर इट्स लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, एनवायरमेंटल ऑडिट एंड अ केस हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल ऑडिट, ये बचा है। अब बाकी सब्जेक्ट्स में तुम लोगों की फर्स्ट क्विज का क्या है? मैंने पूछा तो था रश्मि से, तो कुछ अभी हमको ढंग से पता नहीं चला। तो और टीचर्स का क्या है? फर्स्ट क्विज के लायक तो वैसे सभी का हो गया होगा मटेरियल। तो अभी ये लोग क्या करने वाले हैं, कुछ सर ने बताया है? और मिड सेम के बारे में कुछ सर ने बताया तुम लोगों को? नो मैम, सर क्लास ही नहीं ले रहे हैं। सर कहाँ बिजी हैं? ठीक है, ऐसा करते हैं कि फिर आप लोग जो है आज खाली EIA का आप बस डेफिनेशन लिख लो, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर से डेफिनेशन से कराएंगे। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो है जब फंडिंग के लिए सबमिट किया जाता है, तब आजकल उसका मैंडेटरी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है। और ये 86 के भी कुछ सालों बाद जो है ये बेसिकली 90s से चल रहा है। और ये असेसमेंट इसलिए करते हैं कि जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है, मतलब जो प्रोजेक्ट है वो उसका डेवलपमेंट के लिए जो है, जो भी इकोनॉमिक एस्पेक्ट है उसको तो देखेंगे ही, लेकिन इकोनॉमिक एस्पेक्ट का मतलब है कि उसमें कॉस्ट कितनी आएगी, बेनिफिट कितना होगा। तो CBA वाले एंगल से तो उसका इवेल्युएशन होता ही है। उसके साथ साथ जो है उस प्रोजेक्ट का जब प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होगा उसका एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट होगा, गुड बैड, जो भी है, लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म में, इसका इवेल्युएशन मैंडेटरीली किया जाता है। मैंडेटरी का मीनिंग है कि किसी भी प्रोजेक्ट प्रपोजल के साथ में EIA का प्रोफॉर्मा जो है, जो प्रपोजल सबमिट करता है उसको भरना होता है और प्रोफॉर्मा भरना पड़ता है। उसके बाद में जब प्रोजेक्ट सबमिट किया जाता है, क्योंकि हर एक का तो एनवायरनमेंट पे खैर इफेक्ट नहीं होता है, या हो सकता है किसी का बहुत मिनिमम इफेक्ट हो, किसी का बहुत ज्यादा इफेक्ट हो। तो उस तरीके से जो है मतलब जो भी प्रोजेक्ट प्रपोजल डेवलपमेंट वाला सबमिट होता है उसमें EIA का प्रोफॉर्मा भरना मैंडेटरी होता है, सबको भरना पड़ता है। उसके बाद उनको जो है 3 कैटेगरी में उनको बांटा जाता है। मतलब एक कैटेगरी वो जिसका EIA इवेल्युएशन की जरूरत नहीं होती, मतलब
प्रोफॉर्मा भरते हैं, लेकिन फिर उसके बाद में उनको सेग्रीगेट कर देते हैं कि नहीं इसमें एकदम बहुत ही मिनिमम है तो इनको EIA की जरूरत नहीं है। एक कैटेगरी वो हो जाती है, फिर दूसरी कैटेगरी होती है जिसमें कि EIA इवेलुएशन होना है, और थर्ड कैटेगरी होती है जिसमें कि मतलब EIA हेवी इवेलुएशन होना है, क्योंकि उसका उस प्रोजेक्ट का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा एनवायरनमेंट पे। So everybody submitting a developmental project has to submit and fill out the EIA proforma, that is proforma for assessment of impact of project on the environment, and then after that they will be quickly segregated into 3 lots. The first lot of projects which have minimal or negligible impact on environment and they do not require EIA evaluation. Second lot which requires EIA evaluation, but their impact is moderate. And the third category of project proposals which have very high impact on the environment and need to be evaluated for EIA thoroughly. तो 3 कैटेगरी में उनको डिवाइड कर दिया जाता है। तो फिर डेफिनेशन भी अभी नहीं लिखवा रहे हैं क्योंकि वो उसकी थोड़ा लैंग्वेज जो है वो एकदम टिपिकल लैंग्वेज में डेफिनेशन है, और व्हाट इज EIA का मैं सजेस्ट करूंगी कि जो ये एकदम टिपिकल लैंग्वेज में जिसमें सारी चीजें कवर करते हुए जो डेफिनेशन है, इसको जहां तक हो सके तो ऐसे ही लिखें, नहीं तो उसकी कोई ना कोई चीज जो है फिर उसकी इम्पोर्टेंट रह जाती है। तो EIA की डेफिनेशन और ऑब्जेक्टिव्स जो है नेक्स्ट टाइम कराएंगे। आप लोग ये रेडी रखना, EIA एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स वाला PDF सामने खोल के रखना, और फिर जो है हो सकता है कि हम लिखवा भी देंगे क्योंकि इसमें दिया तो हुआ है, देखेंगे उस समय। और फिर यही कैटेगरी A, B1, B2 जो 3 कैटेगरी मैंने बताई अभी, तीन लॉट्स में उनको डिवाइड कर देते हैं, और फिर आगे EIA का रफली ओवरऑल प्रोसीजर एक्सेट्रा फिर ये नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ठीक है, okay, tomorrow again 4 to 5 biology class will be there. Okay, ma'am. Thank you. Okay, thanks.